हे गाइस, वेलकम बैक टू सेंटेड मेमोरीज। और आज हम बात करने वाले हैं अगेन फ्रेश फ्रेगरेंसेस की, बट अगेन नॉट द बोरिंग सोप एंड वाटर टाइप फ्रेश। ये वो फ्रेश फ्रेगरेंसेस हैं जिनके अंदर कैरेक्टर, डेप्थ और थोड़ा ड्रामा है, मतलब फ्रेश भी और याद रहने वाले भी। फ्रेश एंड मेमोरेबल। आई गॉट अ मिक्स्ड सिलेक्शन हेयर, नीश डिजाइनर और बजट फ्रेंडली, सो लिटरली समथिंग फॉर एवरीवन। सो लेट्स बिगिन। So I'd like to start with Acqua di Gio Parfum by Giorgio Armani. So this offers a refined aquatic freshness, clean bee, elegant bee, or thoda mischievous bee. There is a beautiful mix of marine breeze and bright citrus freshness with a fresh spicy zing from ginger that adds a little spark and energy to the scent. जैसे समुद्र के पास खड़े हो और ठंडी हवा फेस पे फील हो रही हो. Everything feels very well blended and smooth with no harshness or sharp edges. There's also a very subtle instant smokiness that instantly adds a touch of sophistication. ये smoky nuance aquatic freshness को overpower नहीं करता. It simply adds a classy depth. अगर आपने Acqua di Gio Profumo try किया है, which is sadly discontinued now, उसमें ये smoky darkness थोड़ी ज़्यादा noticeable थी और वो version honestly absolute class tha. But the good thing is that this one carries a very similar DNA. I just find the parfum slightly softer, brighter and fresher, which actually makes it even more suitable for warm weather. The salty marine vibe with that mineral facet absolutely transports you to a mysterious seaside where dark clouds are looming over the horizon as far as you can see, where the sea waves feel like they're trying to overtake the shore and a strong breeze is shaking the lush green trees around you. That breeze carries wafts of aquatic, aromatic, earthy, woody, beautifully green scents in the air, creating this nostalgic, almost passionate feeling. The kind of feeling where you suddenly start missing that special woman in your life, someone you've known for a while, and yet there is still a little mystery about her. All of this together gives the fragrance a beautifully masculine character with aromatic herbs and soft woody tones that feel structured, polished, and confident. Office, formal events, summer evenings या daily wear सब में effortlessly काम करता है. Fresh है but definitely not basic. Performance भी काफी रिस्पेक्टेबल है, स्किन पे काफी देर तक रहता है और एक एलिगेंट ऑरा मेंटेन करता रहता है. ओवरऑल अगर आपको एक्वाटिक फ्रेशनेस पसंद है लेकिन उनमें सोफिस्टिकेशन और डेप्थ भी चाहिए, देन Acqua di Gio Parfum is definitely a timeless choice. नेक्स्ट आई हैव Torino 21 बाय Xerjoff. ये फ्रेश का रिच वर्जन है. ये फ्रेग्रेंस एकदम फ्रेश एनर्जी का एक्सप्लोजन लगता है. क्रिस्पी फ्रेश विद लेमनी, जिंगी एंड कूल मिंटी एनर्जी जो कि इंस्टेंटली सेंसेस को वेकअप कॉल देती है. मिंट यहाँ मिंटी बट बिल्कुल नेचुरल फील होता है, जैसे हाथ में मिंट लीव्स रब करो और उसकी क्रिस्प ग्रीन स्मेल हवा में स्प्रेड हो जाए. साथ में ग्रीन एरोमेटिक हर्ब्स का फील जो सेंट को बहुत लाइवली और आउटडोर्सी बना रहा है. देयर इज जैस्मिन एंड ब्लैक करंट एडिंग दैट ब्यूटीफुल फ्लोरल एलिमेंट एंड स्वीट फ्रूटीनेस. इमेजिन करो एक ब्यूटीफुल मेडिटेरेनियन गार्डन, धूप हल्की सी चमक रही है, आसपास सिट्रस ट्रीज और ग्रीन प्लांट्स है और हल्की सी ब्रीज चल रही है जो लेमनी, मिंटी और हर्बल फ्रेशनेस को हवा में घुमा रही है. पूरा वाइब बहुत अपलिफ्टिंग और जॉयफुल लगता है, जैसे समर वेकेशन का मूड हो जहाँ सब कुछ ब्राइट और एनर्जेटिक फील हो रहा हो. देयर इज अ टच ऑफ स्मूथ वुडीनेस that makes it so polished, and for that reason ये सिर्फ स्पोर्टी नहीं लगता बल्कि थोड़ा लग्जूरियस और सोफिस्टिकेटेड भी फील देता है. परफॉर्मेंस इज ऑल्सो गुड, ब्राइट एंड फ्रेश है बट लाइट वेट नहीं लगता एंड प्रेजेंस काफी अच्छी मेंटेन करता है. ओवरऑल Torino 21 feels like sunshine, energy, or effortless confidence. Next, I have Bois Imperial by Essential Parfums. If you like Ganymede by Marc Antoine Barra, that's one of my top favorite men's fragrances of all time. If you like that one, you like this one too. For me, this scent profile has that absolute wow factor. If you pass by me wearing this, I would turn. This is not your typical fresh scent profile. इसका vibe थोड़ा green, ozonic, woody, spicy, fresh type का है. I love basil in perfumes. Depending on how it's used, it adds this subtle, fresh, sparkling, green, sweet, sometimes a little peppery, fresh, spicy element to composition. It's beautifully fresh and airy here, giving it a garden walk wally feeling while wearing an expensive suit in a confident executive style. Beautifully and prominently woody, clean woody, airy, earthy, ambery, ozonic, थोड़ा सा spicy warmth भी मिलता है जो इसको सिर्फ clean scent नहीं रहने देता बल्कि थोड़ा mysterious बना देता है. Like someone who appears to be effortlessly impactful and popular. ये fragrance office friendly भी है और creative लोगों के लिए भी है, fresh but artistic. Next I have Carioca Heart by Juice Box. ये वाला बहुत bright और joyful है. For me this is absolutely fantastic.
ये स्पार्कलिंग फ्रूटी वुडी और मस्की फ्रेग्रेंस है जिसमें प्रोमिनेंट नोट्स है मैंगो और पाइनएप्पल, थोड़ा सा फ्लोरल भी लगता है जैसे पियोनी का सटल टच। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ राइप येलो मैंगो लगता है, लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा ग्रीन और थोड़ा ड्राई मैंगो फील होता है। इट्स नॉट सिरपी। आई नो जब लोग सेम फ्रेग्रेंस के बारे में टोटली डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं तो इट गेट्स कंफ्यूजिंग, बट आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ एंड ऑन बिहाफ ऑफ माई नोज, एंड टू माई नोज दिस इज dry and I mean it in the best way possible because I really do love this scent. ये fragrance light sparkling और airy feel देता है, थोड़ा crispy fresh लेकिन overly citrusy fresh नहीं। lemon oil note भी यहाँ subtly blended है और super light vanilla के साथ harmoniously blend होता है। मतलब freshness is there लेकिन एक musky woody dimension के साथ। texture बहुत light feel होता है लेकिन performance is top notch। मेरे skin पर 8+ hours तक रहता है और projection भी moderate but ब्यूटीफुली नोटिसेबल है। मूड बूस्टिंग अपलिफ्टिंग ये दोनों वर्ड शायद आज की सारी फ्रेग्रेंसेस में एक कॉमन फैक्टर होंगे और यहाँ भी ये परफेक्टली फिट होते हैं। इसमें थोड़ी पाउडरी विनिलिक क्रीमी और लाइट बूजी क्वालिटी भी है। अम्ब्रोक्सन एड्स एरी और वेलवेटी मस्की टच जो ओवरऑल फ्रेग्रेंस को स्टनिंग बना रहा है। दिस इज लाइक अ चिल ड्रिंक विद आइस क्यूब्स। इसमें एक सॉफ्ट स्वीटनेस है जो थोड़ा हैप्पी ट्रॉपिकल सा फील देती है, नॉट टू शुगरी बट जस्ट प्लेफुल। इसका मूड बहुत कैजुअल और सनी है, ब्रंच बीच वॉक या डे टाइम हैंग आउट के लिए perfect, absolutely unisex, tropical, fruity, sweet और woody, perfect for summer time। मुझे पर्सनली ये सेंट बहुत पसंद है। फ्रेश है, लाइवली है और एकदम एनर्जेटिक फील देता है विदाउट बीइंग ओवरपावरिंग। फ्रेश, हैप्पी और एफर्टलेस टाइप। नेक्स्ट आई हैव आम्रा कलाब्रिया बाय निशाने। ये फ्रेश कैटेगरी में एक रेबल है, जेस्टी ज्यूसी सिट्रसिस बट एक क्रीमी वार्म एम्बर ग्लो के साथ, जैसे फ्रेश लेमनेड के ग्लास में थोड़ा सा हनी और सनशाइन मिक्स हो गया हो। फ्रेशनेस के साथ एक कोजी वार्मथ भी है जो इसको सिर्फ स्पोर्टी नहीं बल्कि सेंसुअल बना रही है विद beautiful vanilla. There is a green side to it with galbanum, but it's countered beautifully with the creamy floral addition of jasmine and the warmth from amber and vanilla. And even though citrusy aspect यहाँ बिल्कुल sharp या piercing नहीं है, but it's very masculine in feel to me. It's the kind you find in men's aftershave. This is very rounded, very creamy, kind of glowing and quite unique in feel, but it offers such a pleasant wearing experience. I find it suitable for any weather. Fresh, powdery, creamy warmth and the dry down. Oh my god. जो whiffs उठ के आ रहे हैं, they are absolutely to die for. Easy transition from day to evening. अब नेक्स्ट आई हैव आइलैंड बाय खटलज। ये प्योर वेकेशन वाइब्स है, फ्रूटी स्वीटनेस विद थोड़ा पाइनएप्पल, थोड़ा सिट्रस स्पार्कल, बिट ऑफ कोकोनटी क्रीमीनेस और साथ ही एक ओशन एयर फील। इसमें एक लाइट क्रीमी स्वीटनेस है जो सन हैट और बीच कॉकटेल वाली फीलिंग लाती है। फन, यूथफुल और केयरफ्री, जैसे फ्लिप फ्लॉप्स पहनकर सनसेट देख रहे हो। बजट फ्रेंडली होते हुए भी मूड बूस्टिंग एंड अपलिफ्टिंग। Next is Musk Therapy by Initial Parfums. Musk Therapy is clean skin plus soft white florals plus creamy musk जैसे freshly washed cotton sheets और ठंडी हवा का mix। ये ज़्यादा citrusy या aquatic नहीं है बल्कि airy smooth freshness है which is so pleasant and comforting। इसमें एक सटल स्वीटनेस भी है विद द ब्लैक करंट जो इसे ब्लैंड नहीं होने देता, बहुत कामिंग ऑरा क्रिएट करता है। इट्स क्लीन एंड फ्रेश एंड अ लिटिल वुडी मस्की सेंट विद अ क्रीमी सूदिंग फील विच इज़ ग्रेट फॉर समर, मेक्स यू फील लाइक यू आर कनेक्टेड विद द नाउ, which is probably where we should all live, not in the past, not in the future. We need to be wholeheartedly present in the now. Very inoffensive, crowd pleasing and a very easy to grab kind of fragrance. इसको लगाने के बाद लगता है जैसे naturally nice smell करते हो। And last but not the least, I have Jungle Vibe by Rehan. Another budget but great fragrance. ये fragrance एकदम green, vibrant और playful feel देता है as if you are in nature. There is a prominent fig here. This grapefruit फ्रूटी स्वीटनेस का एक ब्राइट सा कैरेक्टर जो इंस्टेंटली समर वाइब्स ले आता है। साथ ही एक फ्रेश सिट्रस स्पार्कल भी फील होता है जो सेंट को लाइवली और इनविगरेटिंग एनर्जेटिक बना देता है। पूरा वाइब ऐसा लगता है जैसे किसी लश ट्रॉपिकल आइलैंड में हो, हर तरफ डेंस ग्रीन ट्रीज, हवा चल रही है और हवा के साथ फ्रूटी स्लाइटली स्वीट और फ्रेश वुडी नोट्स की वॉफ्स आ रही हैं। देयर इज अ वेरी ऑब्वियस एंड अ वेरी प्रोमिनेंट ग्रीन और स्लाइटली वुडी अंडरटोन दैट लास्ट थ्रू आउट द वेयर। बिकॉज ऑफ दिस इट डजंट जस्ट फील लाइक अ ट्रॉपिकल fruity scent. I think it also adds a bit of structure. परफॉर्मेंस भी अपनी कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी डिसेंट है, नोटिसेबल रहता है और एक फन एनर्जेटिक ऑरा क्रिएट करता है अराउंड यू। स्प्रिंग समर के लिए फ्रेश का मतलब सोप या सिट्रस नहीं होना चाहिए। फ्रेश का मतलब हो सकता है जेस्टी, ग्रीन, मस्की, फ्रूटी, वार्म फ्रेश, क्रीमी फ्रेश
और ये फ्रेगरेंसेस दिखाते हैं कि फ्रेश भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सा सेंट आपकी वाइब है, ग्रीन फ्रेश, सिट्रस फ्रेश, ट्रॉपिकल फ्रेश, मस्की, क्लीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे फ्रेश, स्टे फ्रेग्रेंट। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।